السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائن۔ کے سی آر اور ہریش راؤ پالامورو رنگاریڈی پروجیکٹ پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ صرف 25,000 کروڑ روپے صرف کیے گئے، مزید 80,000 کروڑ روپے درکار۔ وزیر آبپاشی کا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن۔ بی جے پی انسانی ضرورت کے لیے صاف پینے کا پانی بھی فراہم نہیں کر پا رہی ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ مدھیہ پردیش میں ہوئی اموات پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی کا رد عمل۔ 3 جنوری سے مہاراشٹرا بلدی انتخابات کے لیے مہم۔ روڈ سیفٹی سماجی ذمہ داری، سبھی کو قواعد پر عمل کرنا چاہیے۔ عوامی اشتراک سے حادثوں میں کمی کریں گے۔ روڈ سیفٹی مہینے کی افتتاحی تقریب سے ریاستی وزیر پونم پربھاکر کا خطاب۔ کامیابی اور شکست مستقل نہیں ہوتی، کے سی آر کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے عزم کے ساتھ کام کریں۔ پارٹی کیڈر سے کے ٹی آر کا خطاب۔ کانگریس کی حکومت کو بنایا نشانہ۔ اور شہر میں نئے سال کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن۔ 2,731 افراد کے خلاف مقدمہ، پولیس کا وسیع تر بندوبست۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں، کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔
और अब पेश हैं खबरें तफसील से। असेंबली इजलास के तनाजुर में अपोजिशन बीआरएस के आबपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक जवाब देने के लिए रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जुमेरात को वजीर आला और काबीनी रफका की मौजूदगी में प्रेजेंटेशन दिया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर और हरीश राव पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल होने का भी झूठा दावा किया गया। रियासती वजीर ने बताया कि सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट पर खर्च किए गए। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए मजीद 80,000 करोड़ रुपए दरकार हैं। बीआरएस हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को जानबूझकर नजरअंदाज किया। असेंबली का सरमाई इजलास का जुमा से दोबारा आगाज होगा। पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट समेत कृष्णा आबी वसाइल पर लड़ाई लड़ने के लिए खुद मैदान में उतरने और हुकूमत की खाल उतारने की वार्निंग देने वाले बीआरएस चीफ केसीआर ने एक बार फिर फार्म हाउस का रुख कर लिया है। इधर कृष्णा के पानी में हुई नाइंसाफी पर असेंबली में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की हुकूमत तैयारी कर रही है। ऐसे अहम वक्त में बहस और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी हरीश राव के हवाले करके केसीआर मंगल की रात ही फार्म हाउस चले गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी समेत हुक्मरान जमात के कायदीन पहले ही चैलेंज दे चुके हैं कि कृष्णा का पानी में गलती किसकी है। इस पर बहस के लिए केसीआर असेंबली आए। ताहम यह दलील दी जा रही है कि अगर केसीआर ऐवान में आते तो बीआरएस दौरे हुकूमत की कोताहियां सामने आ जाती। इसी खौफ से हरीश राव को आगे किया गया। कहा जा रहा है कि बदनामी अपने सर न लेने के लिए ही केसीआर ने खुद को पीछे रखा। इसी तरह केटीआर के बजाय हरीश राव को डिप्टी फ्लोर लीडर बनाने के पीछे भी यही वजह बताई जा रही है। असेंबली इजलास में पानी पर बहस का इम्कान, इसके अलावा हुकूमत बिल्स को मंजूरी देगी। रियासत तेलंगाना में रोड सेफ्टी महीने का आगाज हो गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने इस प्रोग्राम का खैरताबाद में आगाज किया। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हेलमेट भी पेश की। रोड सेफ्टी से मुतालिक शऊर बेदारी के पोस्टर्स, गाड़ियों के स्टिकर और कुतुब को जारी किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद दी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक रोड सेफ्टी महीना मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तुलबा और ओहदेदारों को इस प्रोग्राम में शामिल करते हुए 1 माह का मंसूबा तैयार किया गया है। हर तालिब इल्म और उनके वालिदैन से यह हलफ लेना चाहिए कि हम सड़क के कवानीन पर अमल करेंगे। हादसे नशे में गाड़ी चलाने, मोबाइल फोन पर बात करने, सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से हो रहे हैं। हमें इन कवानीन पर अमल करना चाहिए। सड़क हादसों की वजह से कई बच्चे यतीम हो रहे हैं और लोग माजूर हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम सड़क हादसों के इंसदाद के लिए मुहिम चलाएं। रियासत की ट्रांसपोर्ट महकमे में 1000 मुलाजिमीन हैं और 18 लाख गाड़ियां हैं। सभी को कवायद पर अमल करना चाहिए। ट्रैफिक कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों के लाइसेंस को भी मनसूख किया जा रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अवाम की शिराकत से रियासत में सड़क हादसों में कमी के लिए काम कर रहे हैं। ये एक समाजी जिम्मेदारी है और सभी को कवायद पर अमल करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से भी ट्रैफिक सेफ्टी महीने से मुताल्लिक शऊर बेदारी पर जोर दिया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कोई तब्दीली नहीं आई है। तेलंगाना भवन में केटीआर ने बीआरएस पार्टी के नए साल की डायरी की नकाबकशाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि हर साल कैलेंडर बदल रहा है, लेकिन अवाम की जिंदगियों में कोई तब्दीली नहीं आई है। अवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस को वोट दिया था। पिछले 2 सालों के दौरान तरक्की के बजाय सिर्फ मायूसी में इजाफा हुआ है। आज नए साल का पहला दिन है, लेकिन रियासत के किसान यूरिया के लिए सर्दी के मौसम में भी घंटों कतारों में खड़े हैं। केटीआर ने कहा कि बीआरएस के कारकुन और अवाम कांग्रेस हुकूमत की नाकिस हुक्मरानी के खिलाफ जिद्दोजहद के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीआरएस का मकसद 2028 में केसीआर को दोबारा चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखना है। केटीआर ने अवाम को नए साल की मुबारकबाद भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले जो हालात थे वही आज कांग्रेस दौरे हुकूमत में नजर आ रहे हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 10 साल तक केसीआर के दौरे हुकूमत में तरक्की और फलाह बहबूद के अनमिट नुकूश छोड़े थे और इस तरक्की को कोई फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात से लेकर किसानों के साथ धोखाधड़ी के खिलाफ
पार्टी कारकुनों की जदोजहद पर केटीआर ने मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि केसीआर का मुकाम तेलंगाना के अवाम के दिलों में हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि कामयाबी और शिकस्त मुस्तकिल नहीं होती, ये आर्जी होती हैं। हमें केसीआर को 2028 में दोबारा वजीर आला बनाने के लिए काम करना चाहिए। इस मौके पर पार्टी के दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। दूसरी तरफ कांग्रेस एमपी श्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि केटीआर ने नए साल के पहले दिन ही गोबिल्स मुहिम शुरू कर दी है। मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि एक तरफ हरीश राव और दूसरी तरफ केटीआर कांग्रेस हुकूमत और इंतजामिया पर तनकीदें कर रहे हैं। सी किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हरीश राव कृष्णा गोदावरी पानी पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के बारे में गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। केटीआर भी यूरिया की फराहमी को लेकर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीआरएस लीडर्स को अवामी मसाइल पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस एमपी ने कहा कि 2024-25 और यासंगी की फसल के लिए कांग्रेस हुकूमत ने दरकार यूरिया फराहम किया। बीआरएस के 10 साला दौर में कभी भी इतना यूरिया फराहम नहीं किया गया। केटीआर को झूठे बयानात के जरिए अवाम को मुश्तइल नहीं करना चाहिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इंदौर में आलूदा और जहरीली पानी से हुई अमवात पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकती है, इंसानी ज़रूरत के लिए साफ पीने का पानी तक फराहम नहीं कर पा रही है। ये मध्य प्रदेश हुकूमत की सरासर नाकामी है। हम विश्वगुरु के दावे करते हैं, लेकिन गंदा पानी पीकर लोग मर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। इन लोगों को खाली बुलडोजर की फिक्र है, खाली बुलडोजर से घर तोड़ना चाहते हैं। किसी मुसलमान पे इल्ज़ाम लगा तो उसको लाकर पीटते और घर तोड़ देते। तो ये इनकी गवर्नमेंट ऐसे ही है कि ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है, जिसको इंसान को ज़रूरत पड़ती है, साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं कर सकते ये लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की सरासर नाकामी है कि 2026 में आ गए और 2026 में हम विश्व गुरु के दावे करते हैं और गंदा पानी पीकर लोग मर जाते हैं। तो ये तो इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की ज़रूरत है। बीजेपी के इन तमाम लोगों को जो हमेशा बुलडोज़र इस्तेमाल करते, कभी एनकाउंटर का नाम करते, तो अब ये इनको बताना पड़ेगा देश को। तो ये इसलिए इस तरह की बकवास कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनको कुछ नहीं करेगी, केंद्र की सरकार आंख बंद कर लेगी, कान बंद कर लेगी। अगर वही बकवास अगर कोई और आदमी करता या जिसका ताल्लुक उस धर्म से नहीं है जो इस शख्स का है, तो उस पर तो अब तक तो यूएपीए हो जाता। और आप लोग के चैनलों ने कितना दिखाया तलवार बांटने को? आप सवाल तो मेरे से कर रहे हैं, आपके कितने चैनलों ने दिखाया तलवार बांटने को? आपने कितना दिखाया उस शख्स के बकवास को? तो आप लोगों का भी एक जिम्मेदारी है ना। अगर कोई दूसरा कुछ बोल दे तो आप लोग तो 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप लोग बैठकर फतवे जारी करते। मगर ये जो बकवास बोली जा रही है उसमें कुछ नहीं हो रहा, तलवार बांट रही है और बाद में आप उनको पकड़ते हैं। भाई तलवार अगर बांट रहे हैं तो फिर ये तो कानून को अपने हाथ में सामने ले रहे हैं। बरेली में एक लड़की अपना बर्थडे मनाती है, तो बर्थडे मनाती तो ये कौन है लोग जो घुस के अंदर मारते हैं, लव जिहाद का नाम ले रहे। नौजवान बच्चे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करते हैं, इसको अरेस्ट बोलते हैं आप? जो अरे लड़के उनको अरेस्ट किया। बिल्कुल उनको अरेस्ट करे, उल्टा अरेस्ट करे उन लोगों को जो वहाँ पे इनवाइटेड थे। तो ये इनका दोहरा रवैया है बीजेपी सरकारों का कि ये खुली छूट दे चुके हैं विजिलेंटीज को कि आप जो चाहे करो हिंदुत्व के नाम पर। दूसरी तरफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया के इंतकाल और हिंदुस्तानी वजीर खारजा की उनकी तदफीन में शिरकत पर कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद कशीदा नहीं होंगे। बांग्लादेश का इस्तेहकाम हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है। ये मोदी हुकूमत के लिए आजमाइश है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान किस तरह से ताल्लुकात में बेहतरी ला सकती है। You know, after the death of the ex-Prime Minister in Bangladesh,
our foreign minister has went over there, and we hope that there will be no further deterioration in relations between India and Bangladesh. And Bangladesh stability is very important for India's security, as I've stated earlier, especially in Northeast area. And yes, it is a fact that there are many forces which are inimical to India right now in Bangladesh. But this is a real test for this Modi government, that the relationship which we had with Bangladesh, a strong, a good, strong, stable Bangladesh having good relations with India is very important. And we hope that Mr. Narendra Modi's government will ensure that it happens, that the relationship, gets back to what it was before. And so this is an opportunity and a challenge for the Modi government. सदर मजलिस ने चीन के वजीर खारजा की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी के दावे पर हुकूमत हिंद से वजाहत का मुतालबा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को यह बताना चाहिए कि हम इस मामले में किसी तीसरे फरीक की मदाखलत क्यों कबूल नहीं करते। तो ये जो दावा किया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा ही एक ताज्जुब खेज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया, और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करें और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत ना इसको कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज़्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने, जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। अब बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं, और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज़ को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। चाइना अपने आप को ये बता रहा है कि हम भारत को और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर बिठा रहा है, और पूरे जनूबी एशिया में बता रहा है कि हम बड़े सुपर पावर हैं। तो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद जब चाइना गए थे, तो क्या ये वो इस बात पे एग्रीमेंट उनका हुआ था, क्या उस बात पर राजी हुए थे कि चाइना इस तरह की बात करेगा कि उसने सालिस बना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में? और ये तो दूसरा इस तरह का एक बात रखी गई है, क्लेम किया गया है। पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग को रुकाया और उनको डराया मैंने ट्रेड सैंक्शंस को देकर। तो ये अब चाइना उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि हमने उस जंग को रुकाया। तो हम फिर से कह रहे हैं कि चाइना से अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, तो इस बिना पर ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते कि हम अपनी मुल्क की सालिमियत और सॉवरेनिटी को भूल जाएं। तो ये अब नरेंद्र मोदी की सरकार को इसका खुले तौर पर ऑफिशियली इसका कंडेम करना और इसका रिबट करना चाहिए। बांग्लादेश में वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमेरात की सुबह रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से लोक भवन पहुंचकर मुलाकात की। वज़ीर आला ने रियासती गवर्नर को नए साल की मुबारकबाद दी, बेहतर सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। गवर्नर ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को नए साल की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह से भी उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की और नए साल की मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस की अहलिया भी इस मौके पर मौजूद थीं। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सीता अक्का, कोंडा सुरेखा ने भी वज़ीर आला से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, रियासती डीजीपी श्रीधर रेड्डी और दूसरे अहदेदारों ने भी वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। रियासती चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी है। नए साल 2026 के आगाज के साथ ही अवाम और कारोबारी तबके को महंगाई का एक और झटका लगा है
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जनवरी 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में नुमायां इजाफा किया है। इस इजाफे के तहत 19 किलोग्राम वजनी कमर्शियल सिलेंडर फी सिलेंडर 111 रुपए तक महंगा हो गया है, जिसका इत्तलाक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों में हो चुका है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जहालत के अंधेरों को खत्म करने के लिए हमने इल्म के हुसूल की दौड़ का आगाज किया। बरनागुड़ा बैरिस्टर फातिमा ओवैसी कैंपस में पहली से 5वीं जमात के निसाब की इजराई की तकरीब से खिताब करते हुए कायद मजलिस ने कहा कि नस्ल दर नस्ल से जो खानदान जहालत में डूबे हुए थे, उनकी मौजूदा नस्ल को हमने इन तालीमी इदारों से इल्म की रोशनी दी। कायद मजलिस ने मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों से समाज के लिए अपनी सलाहियतों और वसाइल को बरोकार लाने पर जोर दिया। पहली जमात से 5वीं जमात तक के लिए ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जानिब से ही निसाब तरतीब दिया गया है। कायद मजलिस ने स्कूल के असातिज़ा की भी सताइश की। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने भी शिरकत की। एक अदना सा छोटा सा कौम मिल्लत का खिदमत गुजार हूँ और अपनी जानिब से जो खिदमत हो सकती है टूटे फूटे अंदाज में बहुत सारी कमियां व खामियों के बावजूद एक कोशिश है जो हम करने की कर रहे हैं कि हमने तालीम के तरफ खींचकर उन लोगों को लाया है जिनकी एक नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल नहीं बल्कि 4-5 नस्लें उनकी गुजर गई थीं जहालत के अंधेरों में। तो ऐसी लोग जो नस्ल दर नस्ल से इल्म की दौलत से महरूम थे, जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे, हमने उनको इल्म हासिल करने के लिए न सिर्फ तरगीब दी बल्कि हमने उनको खींचकर इन तालीमी इदारों तक लाया कि हम किताबों में पढ़ा करते थे कि जैसी नीयत वैसी बरकत। पढ़े जरूर, लेकिन मेरे साथ तो हुआ है, नीयत थी, ख्वाब था, देखता था, जुनून था, तड़प थी, फिक्र थी, अज़्म था, इरादा था, हौसले थे। तो अल्लाह ने उन हौसलों को, उस नीयत को गैब के साथ अता किया और गैब के साथ ये काम को करवा दिया। अगर मैं आज सोचूं कि मैं कुछ करूं तो शायद कर ना पाऊं, लेकिन अगर ये सोच कर करूं कि या अल्लाह ये मेरे लिए नहीं, ये तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है, तो ये काम जरूर हो जाता। मैं बड़े अफसोस के साथ, बड़ी ही अफसोस के साथ कह रहा हूं, शायद यहां बैठे लोगों को तकलीफ होगी इस बात को सुनकर, तकलीफ होगी। मैं आपके दिलों को तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहता, लेकिन मेरी तालीमी सरगर्मियों की कामयाबी की निशानियां आज दुनिया के सामने मौजूद है। तो मेरी तालीमी सरगर्मियों की सबसे बड़ी नाकामी यह है कि आज तक एक आदमी से अल्लाह ने मुलाकात नहीं करवाई मेरी, जो मुझे ये बोल दे कि मेरे पास इतना इल्म है, इतनी काबिलियत है, अकबर साहब मुझे मौका दो, मैं फ्री में आके तुम्हारे इदारों में पढ़ाने के लिए तैयार हूं। कोई फ्री में आके तालीम देना नहीं चाहता, कोई फ्री में आके अपना इल्म बांटना नहीं चाहता, कोई फ्री में आके यतीमों के सर पर हाथ रखना नहीं चाहता, यसीरों के हाथ को पकड़ना नहीं चाहता। हमारी कौम का यह है। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि अल्लाह काबिल लोगों को हिदायत दे, हिदायत दे इनको। अरे दौलत 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 तो हाथों का मैल है, किसके पास रहा?
निजाम दक्कन वर्ल्ड रिचेस्ट मैन थे कभी, गए तो कैसे गए, कितनी, क्या आप अपनी दौलत अपने खबर में ले जाएंगे? क्या आप खबर में हीरे मोती चांदी एसी एयर कंडीशन पंखे लगाने से क्या खबर का अजाब आप पर नहीं होगा? अरे आज हर फर्द को जरूरत है कि वो उठे, नेशन बिल्डिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करे, कंट्रीब्यूट करिए। अरे कुछ तो दो, सिर्फ लोगे कब तक? देना भी सीखो। इस्लाम देने का नाम है, इस्लाम देने का नाम है। दुनिया को इस्लाम ने दिया है, यहां है सिलेबस और कंटेंट राइटर सब कुछ है। क्या इस्लाम ने नहीं दिया? क्या मैथमेटिक्स क्या मुसलमानों ने जीरो किसने इजाद किया? किसने? अरे जब तक इस्लाम को मानने वाले देते थे तो अल्लाह भी उनको नवाजता था। जब हम देते थे तो अल्लाह की नवाजिश तख्त ताज की शक्ल में मौजूद थी। हम जब देना छोड़ दिए तो आज हम गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो गए। देने वाले बन जाओ, बांटने वाले बन जाओ तो अल्लाह तुमको नवाजेगा, इज्जत से नवाजेगा, शोहरत से नवाजेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें कामयाबी से नवाजेगा। अल्लाह तुमको दुनिया से भी नवाजेगा, अल्लाह तुमको आखिरत से भी नवाजेगा। हम सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी को लोग एक बेहतरीन मुखर्रिर की तरह जानते हैं। मेरी तकरीर, मेरे खिताब ने वलवला भी मचाया, शोर भी मचाया, तो मुझे जेल तक भी पहुंचाया। मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद दुनिया मेरे शोला नुमाई या मेरे अल्फाज के जादू या मेरे खिताबत के जादू को याद ना रखे, बल्कि मैं चाहूंगा कि दुनिया मेरे बाद मेरे इन इदारों को, मेरे काम को, मेरे खिदमत को याद रखे और करे कि क्या तालीम के मैदान में काम करने वाला शख्स था। ये हम चाहते हैं। सियासत सियासत सियासत, अरे नहीं, सियासत तो जरिया है। मुझे ना कभी सियासत से दिलचस्पी थी, ना है, ना कभी रहेगी। ना एमएलए बनने की ख्वाहिश थी, ना है, ना रहेगी। खुशी खुशी छोड़ दूंगा सियासत, खुशी खुशी छोड़ दूंगा एमएलएशिप, लेकिन मेरी तड़प अगर कहीं है तो इन इदारों में है। और मैं कह रहा हूं कि इतनी तड़प, इतनी मोहब्बत है कि मैंने अपने करीबी लोगों से कहा है कि मेरे मरने के बाद अगर थोड़ी सी कोने में मेरे स्कूलों में कोई जगह है तो वहां पे मेरी खबर बना देना, ताकि मैं मरने के बाद भी अपने खबर के जरिए बच्चों की खिलखिलाहट को सुनते रहूं, इनके पढ़ते हुए, इनके खेलते हुए, इनके हंसते हुए चेहरों को देख सकूं। मेरी ये तड़प, मेरी ये ख्वाहिश है। खुदारा सुनने वालों, खुदारा अगर मेरे अल्फाज तुम्हारे सीने को छू रही हैं, धड़कते हुए दिल पर दस्तक दे रही है, तो खुदारा तुम भी किसी एक गरीब यतीम की कफालत कर दो, अपने इल्म को बांटो और कौम और मिल्लत के नौनिहालों को आगे बढ़ने की रहनुमाई करो। शहर में नए साल का जश्न जोश खरोश के साथ मनाया गया। 31 दिसंबर की रात शहर के मुख्तलिफ मकामात बशमूल टैंक बंड, सेक्रेटेरिएट के पास मनचले नौजवानों का हजूम देखा गया। पुलिस की गैर मामूली चौकसी भी नजर आई। नौजवान गाड़ियों पर सवार देखे गए। शहर के अहम क्लब्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स में भी नए साल के जश्न के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए थे। नशा और ड्रग्स के मुमकिन इस्तेमाल को लेकर पुलिस की तरफ से गैर मामूली चौकसी इख्तियार की गई थी। रिसोर्ट, होटल्स, पब्स पर भी खुसूसी नजर रखी गई थी। तकरीबन 1 बजे रात तक बास मुकामात पर लोग एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद देते हुए देखे गए। कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की
इतला नहीं मिली है। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए थे। खास तौर पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों पर भी नजर रखी जा रही थी। शहर में 31 दिसंबर की रात से लेकर 1 जनवरी की दरमियानी शब तक पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट हैदराबाद, मलकाजगिरी और साइबराबाद इलाकों में मुताल्लिका पुलिस कमिश्नर्स की निगरानी में यह मुहिम अंजाम दी गई। कई अफराद में अल्कोहल की मकदार ज्यादा पाए जाने पर तहवील में भी लिया गया। बाज गाड़ियों को जब्त किए जाने की भी तल्लाट हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नशे की हालत में कुछ अफराद पुलिस के साथ बहस व तकरार करते हुए देखे गए और बाज मकामात पर ड्रामाई मनाजिर भी देखे गए। शराबी नशे में धुत थे, पुलिस से बचने की कोशिश भी करते नजर आए। कोई दीवार से अपना सर टकराता देखा गया तो कोई सड़क पर लेटकर अपनी जांच कराने से कतराता नजर आया तो एक शख्स ये भी कहता हुआ नजर आया कि उसे घर जाने के लिए रैपिडो का इंतजाम करें या पुलिस की गाड़ी में उसे रवाना किया जाए। शहर के चारों कमिश्नरेट्स के हुदूद में नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले 2731 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हैदराबाद कमिश्नरेट में 1198, साइबराबाद में 928 और मलकाजगिरी में 605 अफराद के खिलाफ केस बुक किया गया। पुलिस ने नए साल की आमद से पहले ही वाज़ेह तौर पर कहा था कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने से गुरेज करें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने नए साल के जश्न के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए पुलिस इंतजामात का जायजा लिया और केक काट कर अवाम को नए साल 2026 की मुबारकबाद दी। कमिश्नर पुलिस ने चार मीनार, सेक्रेटेरिएट, KBR पार्क और मेहदीपट्टनम के पास मुनक्किदा तकरीब में केक काटा। इस मौके पर मुताल्लिका पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। नए साल के जश्न के मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया था। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने खुद मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस के अफराद खानदान भी उनके हमराह मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने अर्का फाउंडेशन ओल्ड एज होम का दौरा किया। इस ओल्ड एज होम में तकरीबन 48 मुअम्मरीन मुकीम हैं। पुरानी अदाकारा श्यामला भी यहीं पर मुकीम बताई गई हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तिरमलगिरी के ACP रमेश की कोशिशों से श्यामला को हेल्थ केयर सेंटर मुंतकिल किया गया है। उन्होंने इस ओल्ड एज होम के जिम्मेदारों की सताइश की। इस मौके पर ओल्ड एज होम में मौजूद अफराद में फल भी तकसीम किए गए। साउथ ईस्ट जोन DCP S चैतन्या कुमार की क़यादत में नए साल के जश्न के मौके पर मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में मरीजों में फल तकसीम किए गए। इससे पहले गूंगे और बहरे तलबा के हॉस्पिटल में पेंसिल और बुक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर बताया गया कि मलकपेट, चादरघाट और दबीरपुरा के हुदूद में पुलिस की तरफ से नए साल के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। मरीजों में फल और तलबा में पेंसिल और किताबें तकसीम की गईं। इस मौके पर एडिशनल DCP के श्रीकांत, ACP मलकपेट सुब्बीराम रेड्डी, चादरघाट SHO मुरली के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने 85वीं कुल्हिन सनती नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये नुमाइश 15 फरवरी तक जारी रहेगी। सदर नुमाइश सोसाइटी और रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें D श्रीधर बाबू ने नुमाइश की गर्ज़-ओ-ग़ायत और इसके बुनियादी मकसद पर भी रोशनी डाली। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नुमाइश हैदराबाद की समाजी और तहजीबी सरगर्मियों का एक अटूट हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सनतों और छोटे सनतों को फ़रोग़ देने 1938 में इसका आगाज़ हुआ था। उन्होंने बताया कि इस मरतबा 1050 स्टॉल्स इस नुमाइश का हिस्सा होंगे। नुमाइश के जरिए तालीमी तिबी इदारों को सोसाइटी चलाती है। श्रीधर बाबू ने कहा कि नुमाइश के लिए फ्री पार्किंग सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने बताया कि नुमाइश हैदराबाद की हम तहजीबी समाज की एक अलामत है। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर और दूसरों ने भी इस तकरीब से खिताब किया। नायब सदर नुमाइश सोसाइटी R सुकेश, एजाजी सेक्रेटरी BN राजेश्वर, खाजिन डॉक्टर N संजीव कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी T चंद्रशेखर और सोसाइटी के दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे।
साल नौ के मौके पर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में अवाम का हुजूम देखा गया, जिनकी तादाद करीब 25,000 बताई जाती है। जू इंतजामिया की जानिब से मुशाहिदीन की सहूलत के लिए ओहदेदारों और दूसरे स्टाफ को मुख्तलिफ मकामात पर खड़ा किया गया ताकि वो जू देखने वालों की रहनुमाई करें। जू पार्क में बुकिंग के लिए काउंटर्स की तादाद में भी इजाफा किया गया है। मुशाहिदीन अपने मोबाइल के जरिए भी दाखिले के लिए बुकिंग कर सकते हैं। ज्यादातर अवाम का हुजूम शेर, बब्बर, हाथी, हिप्पो, जिराफ और जेबरा के पिंजरों के करीब देखा गया। जू पार्क में ट्रेन राइड, सफारी पार्क कॉम्प्लेक्स और बैटरी से चलने वाली राइडर्स का भी इंतजाम है ताकि मुशाहिदीन का ज्यादा से ज्यादा वक्त दिलचस्प और पुरमसरत गुजरे। जू पार्क की क्यूरेटर जय वसंता IFS ने साल नौ की मुबारकबाद देते हुए नए साल की पिकनिक के लिए नेहरू जू पार्क का इंतखाब करने पर इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने तालाब चंचलम में जारी तकरीबन 25 लाख रुपए के CCRD के कामों का मुआयना किया। नशेमन नगर और सिद्दीक नगर में ये काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने कामों की जल्द तकमील से मुतालिक ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने मुकामी अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। दौरे में मुतल्लिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना और पार्टी के सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरा में रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के हाथों जहानुमा डिवीजन में ज़ायद 9 करोड़ रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि मज़कूरा रकम से जहानुमा डिवीजन में बॉक्स ड्रेन नाले के अलावा दूसरे काम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मज़कूरा कामों के लिए मंजूरी मिली है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मुख्तदर बाबा, हुसैनी पाशा, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कादर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान, साबिक कॉरपोरेटर एम गफ्फार के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर के OSD श्रीनिवास वेमुला से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स के ताल्लुक से बात की। उन्होंने मज़कूरा ओहदेदारों को जल्द से जल्द चेक्स जारी करवाने के लिए मुतवज्जे किया। गरीब और मुस्तहक़ अफराद के लिए CMRF की रकम बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत अहम है। हालांकि चेक्स जारी करने में काफ़ी वक्त उन्हें इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुतल्लिका ओहदेदारों की लापरवाही या अदम दिलचस्पी हो सकती है। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मेराज कॉलोनी टोली चौकी का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने VDCC रोड के तरक्याती कामों का भी मुआयना किया और ज़रूरी हिदायतें दी। दौरे में उनके हमराह मजलिस के कॉरपोरेटर्स के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। फलकनुमा पुलिस ने गुमशुदा बच्ची का 1 घंटे में पता चलाते हुए उसे वालिदैन के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा पुलिस स्टेशन को 100 नंबर से आज सुबह 10:30 बजे वट्टेपल्ली मोहम्मदिया कॉलोनी के साकिन 3 साल बच्ची के लापता होने की इत्तला मौसूल हुई थी। SHO फलकनुमा सतैया की हिदायत पर कांस्टेबल चंद्रशेखर, नरसिम्हा और प्रवीण ने 1 घंटे के अंदर लड़की का पता चला लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। सरपरस्तों को भी पुलिस स्टेशन तलब करते हुए लड़की उनके हवाले की गई। नारसिंगी में नए साल के मौके पर ड्रग्स फरोख्त करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। नारसिंगी पुलिस के मुताबिक 46 साला महांकली श्रीनिवास कल्याण को गोल्डन टेम्पल के साथ 7 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया। श्रीनिवास ने गोवा के विजय से यह कोकेन हासिल की थी। नए साल की आमद के पेश नजर पुलिस की तरफ से गैर मामूली चौकसी अख्तियार की गई थी और इसी दौरान श्रीनिवास को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 2 फोन भी जब्त किए गए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी,
जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत, 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। केसीआर और हरीश राव पालमूरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट पर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए सर्व किए गए, मजीद 80,000 करोड़ रुपए दरकार। वजीर आबपाशी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बीजेपी इंसानी जरूरत के लिए साफ पीने का पानी भी फराहम नहीं कर पा रही है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मध्य प्रदेश में हुई अमवात पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। 3 जनवरी से महाराष्ट्र बलदी इंतखाबात के लिए मुहिम। रोड सेफ्टी समाजी जिम्मेदारी, सभी को क़वायद पर अमल करना चाहिए। अवामी इश्तिराक से हादसों में कमी करेंगे। रोड सेफ्टी महीने की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। कामयाबी और शिकस्त मुस्तकिल नहीं होती। केसीआर को दोबारा वजीर आला बनाने के अज़्म के साथ काम करें। पार्टी कैडर से केटीआर का खिताब। कांग्रेस की हुकूमत को बनाया निशाना। और शहर में नए साल का जोश खरोश के साथ इस्तकबाल। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 2731 अफराद के खिलाफ मुकदमा। पुलिस का वसी तर बंदोबस्त। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।